असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नामरूप उर्वरक संयंत्र लगभग 2000 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे पूरा होने में 3 से 4 वर्ष का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को दोपहर 11:15 बजे असम पहुंचेंगे। आगमन के तुरंत बाद वे भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके पश्चात प्रधानमंत्री गुवाहाटी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री अगले दिन सुबह 8 बजे असम के 25 मेधावी बच्चों से मुलाकात करेंगे। इसके पश्चात वे हाल ही में असम आंदोलन के शहीदों की स्मृति में निर्मित शहीद स्मारक जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे नामरूप में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां यूरिया संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। Fertilizer is a project worth 2000 crore. So global bidding, environmental clearance, land allocation, কেইবাটাও পৰ্যায় পাৰ হৈ আমি আশা কৰো যে it will take 3 to 4 years to complete the project. আৰু ই 12 lakh ton metric ton ammonia আৰু urea produce কৰিব আৰু India's one of the largest fertilizer factory হ'ব। Since Prime Minister is coming on a 2-day visit, if you can give a glimpse of his scheduled visits. I have already spoken to our media friends today in BJP party office, but let me repeat again. Prime Minister will arrive at 2:45 p.m. on 28th of December. He will unveil a statue of Bharat Ratna Lokpriya Gopinath Bordoloi immediately on his arrival. Thereafter, he will inaugurate the new terminal of Guwahati Airport. We should not confuse. The old terminal will be closed. For some time, international flight will go from the old terminal because of customs and other requirement. But eventually, old terminal will close. The only terminal will be the new terminal. And already planning for second terminal is already in the process. So the entire activity will now run from the new campus, not from the old campus. After inauguration of the airport, he will address a gathering immediately thereafter. After that, he will come to the state headquarters of Bharatiya Janata Party and he will interact with the MPs, MLAs and senior leaders of the party. Next day morning at 8 a.m. he will meet 25 meritorious children of Assam in a steamer called Saraido. Basically, he will interact with them. There is a Parikha Pe Sarsa kind of environment will be there. He will keep on traveling over river Brahmaputra, on river Brahmaputra, while interacting with the students. So that program will be for 30 to 40 minutes. Thereafter, he will come to Shahid Smarak, which we have recently constructed in the memory of the martyrs of the Assam agitation, and he will offer floral tribute. He will be there for 15 to 20 minutes. He will also garland the statue of Shahid Khargeshwar Talukdar, who happens to be the first martyr of Assam agitation. Thereafter, he will fly to Dibrugarh, from Dibrugarh to Namrup. He will address the gathering in Namrup at 12 p.m. He will also lay the foundation stone of the urea plant, and that meeting will be for an hour. After that, he will come to Dibrugarh again, and from Dibrugarh he will go back to Delhi. So in Guwahati meeting, how much public or BJP worker? It is about the capacity. I think
the meeting and the road show leading to the party office, I am sure that there will be more than 2 lakhs BJP Karyakarta throughout the roads. But meeting venue cannot accommodate more than 80,000 people. So in the meeting venue there will be 85,000 people. But from the Jalukbari point to BJP party office, there will be another lakhs of at least 1 lakhs BJP Karyakarta throughout the road. So I think that during that meeting plus road show, there will be at least 2 lakhs BJP Karyakarta on the road on that day. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक वायरल वीडियो पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये वीडियो एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश से संबंधित बताया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बात अलग है कि वो एक मुस्लिम महिला थी और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, लेकिन किसी भी महिला पर इस तरह हाथ डालना या उसके कपड़ों को छेड़ना कहाँ तक सही है? उन्हें आखिर क्या जरूरत थी कि वे किसी महिला के कपड़ों को हाथ लगाएं? उन्होंने आगे कहा कि इस तरह जबरदस्ती एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश न केवल आपत्तिजनक है बल्कि पूरी तरह अस्वीकार्य भी है। महिला डॉक्टर ने स्वयं कहा है कि वो अब उस स्थान पर नौकरी भी नहीं करना चाहती। उमर अब्दुल्ला ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और संबंधित महिला डॉक्टर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पे महिला डॉक्टर के हिजाब को नीचे करना सर, यहाँ पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से उत्तर भारत में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को स्थायी बलि का बकरा बनाया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पिछले 10 सालों से बीजेपी और केंद्र सरकार उत्तर भारत में फैले प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराती रही है। अब स्थिति ये है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी सत्ता में है और उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं। उन्होंने आगे सवाल उठाते हुए कहा, आज जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो ये पूछने का समय है कि बीजेपी और केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है। जब हर जगह उनकी ही सरकार है तो फिर जिम्मेदारी से बचने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। रमेश वर्मा जी हों, चाहे रेखा गुप्ता जी हों, चाहे सिरसा जी हों या इनके मंत्रिमंडल का कोई और विद्वान मंत्री हो, जिस भी तारीख को, जिस भी जगह, जिस भी समय ये दिल्ली की फाइलों पर या अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर चर्चा करना चाहते हो, सार्वजनिक बहस करना चाहते हो, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, एक बार आमने सामने कर लेते हैं। ये छुप छुप के वार करने से फायदा नहीं होगा। ये पिछले 11 साल तो बल्कि 10 साल कहा जाएगा, 10 साल हमारी सरकार थी, 1 साल एलजी का शासन था, भारतीय जनता पार्टी का सरकार थी। पिछले 10 साल तो केंद्र सरकार और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे उत्तर के भारत के प्रदूषण का बिल जो है अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे फाड़ती थी और इनका प्रदूषण वाली समस्या जो है उसमें एक स्केपगोट मिले हुए थे परमानेंट अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर डाल दो और पतली गली से निकल लो। अब आ गई भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी है। आसपास के राज्य चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों जहां जहां तक हम हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं।
अब मुझे लगता है कि सही समय है जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से पूरे के पूरे उत्तर भारत को सवाल करना चाहिए कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण से जूझ रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के बीचों बीच सरोजनगर और नरोजी नगर इलाके के अंदर 16,500 पेड़ कटवा दिए, बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए। बीचों बीच कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खोल दिए जिसमें लाखों लोगों का आना जाना शुरू हो गया। रिज में 1650 पेड़ बिना अनुमति के गैरकानूनी ढंग से कटवा दिए। और अब जो अरावली माउंटेन रेंज है, जो पूरे के पूरे उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से पिछले शताब्दियों से रोक रही थी, उसको भी पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने मन मुताबिक जजमेंट ले लिया है। तो अब जो राजस्थान, अभी तक राजस्थान के अंदर जो पूरा का पूरा रेगिस्तान था, डेजर्ट था, वो सीमित था। धीरे धीरे मैं आपको बता सकता हूं, आप इसको रख लीजिएगा, आने वाले 20 सालों में पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। और तब हम अपने जो जनरेशन्स हैं उनके आगे शर्मिंदा होंगे। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी का दावा है कि गांवों में जमीनी स्तर पर हुए सुधारों की वजह से ग्रामीण जनता मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। सरकार द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत पहली बार बड़े स्तर पर नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे गांवों में नशे के नेटवर्क पर चोट पहुंची है। इसके अलावा करीब 70 वर्षों बाद खेतों तक नहरों का पानी पहुंचाया गया है, जिससे सिंचाई व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और किसानों को राहत मिली है। ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय 8-8 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। वहीं 90% से अधिक लोगों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सरकार ने 19,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण व मजबूतीकरण कराया है, जिन पर 5 साल की गारंटी भी दी गई है। सरकार का ये भी दावा है कि राज्य में बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं में भरोसा बढ़ा है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि इन्हीं कदमों की वजह से पंजाब का ग्रामीण इलाका आम आदमी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है और सरकार की नीतियों को समर्थन दे रहा है। वो कौन से काम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं? सबसे बड़ा काम है युद्ध नशे विरुद्ध। पहली बार उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी, उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी लेकिन किया कुछ नहीं, 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले और 25,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक। किसानों के गांव में, खेतों में पहली बार 75 साल के बाद उनके खेतों में पानी आया है, नहर का पानी आया है। 75 साल से नहीं आया था। लोग कहते हैं कि पानी को तरस गए थे, पहली बार पानी आया है। लोगों को, किसानों को उनकी सरकारों में, कांग्रेस के, अकाली दल के टाइम में रात को 3 बजे उठ के अपना बिजली आती थी 3 बजे, और रात को 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। हमारी सरकार के दौरान 8 घंटे लगातार दोपहर के अंदर बिजली आती है, उनको रात को उठने की जरूरत नहीं है और अच्छी बिजली आती है। लोग उससे बहुत खुश हैं। बिजली फ्री जो की है हमने, 90% से ज़्यादा पंजाब को आज अपने घर की बिजली फ्री मिल रही है, इससे लोग बहुत खुश हैं। अभी पूरे पंजाब की ग्रामीण सड़कें, 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। टोटल 43,000 किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं, जिसमें से 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। और सड़कों की क्वालिटी देखने लायक है, शानदार सड़कें बन रही हैं। पहली बार 5 साल का उसके अंदर गारंटी क्लॉज डाला गया है, जो कि पहले कभी नहीं डाला गया। उन सड़कों से बहुत खुश हैं। 58,000 बच्चों को, गांव के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, मजदूरों के, किसानों के बच्चों को नौकरियां मिली हैं, सरकारी नौकरियां। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब के अंदर बिना रिश्वत के और बिना सिफारिश के सरकारी नौकरी मिल सकती है।
मान साहब ने अपने हाथ से सरकारी जिनको नौकरी मिली है उनको सर्टिफिकेट बांटे हैं, कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक 1000 के करीब मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के कोने कोने में चल रहे हैं और लोग इससे इतने ज़्यादा खुश हैं। उसका लगातार फीडबैक जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आता रहता है। अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक में पता चले कि कहीं किसी भी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई कम है या डॉक्टर ठीक कब हुए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है 24 घंटे के अंदर। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफ़ी बदलाव आया है और अगले महीने से 10 लाख रुपए इंश्योरेंस हर परिवार को दिया जाएगा। वो जनवरी के अंदर कार्ड बनने, सबके इंश्योरेंस कार्ड बनने चालू हो जाएंगे और भी बहुत सारे काम हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नाम बदलने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव वल्लभ ने इंडी गठबंधन की पार्टियों पर तीखा हमला बोला है। गौरव वल्लभ ने कहा कि इंडी गठबंधन की पार्टियां निश्चित रूप से उस बिल को फाड़ देंगी जिसमें भगवान राम का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में ये पाप किया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि वे ऐसा न करें। ये न केवल संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है बल्कि देश की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। बीजेपी नेता ने जोर देते हुए कहा कि ऐसा करने वालों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। जहां प्रभु श्री राम का नाम है उस बिल को तो इंडी अलायंस के दल फाड़ेंगे ही, पर आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में इंडी अलायंस के दलों ने, उनके नेताओं ने पाप किया है। आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जो बिल देश के गरीब ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए लाया जा रहा है उसको कमजोर करने के लिए उसको फाड़ा जा रहा है। ये बिल फाड़ना, अध्यादेश फाड़ना, ये कांग्रेस की तो परंपरा शुरू से रही है, पर आश्चर्य इस बात से हो रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में ये पाप किया जा रहा है। देश की सर्वोच्च संस्था के अंदर बैठकर चुने हुए लोग इस तरह का पाप कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा देश के सभी सांसदों से कि इस तरह का पाप ना करें। प्रभु श्री राम का, जहां राम का नाम है, उसको फाड़ने की आपकी परंपरा को आप बंद कीजिए और 140 करोड़ देशवासियों से इस बात के लिए माफी मांगिए क्योंकि आपने लोकतंत्र को कमजोर करने का, लोकतंत्र के मंदिर का अपमान करने का जो पाप किया है उसके लिए देशवासियों से अब माफी मांगिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें